لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، سورہ کہف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 83 اور وقت رہا تو آیت نمبر 84 85 یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان کے تعلق سے بات آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 83 جس میں ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، آپ سے پوچھ رہے تھے؟ یہ سوال کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اس میں جو پروناؤن ہے وہ کن کے لیے ہے؟ یسألونک، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ کون لوگ تھے یہ؟ مکے کے مشرکین تھے، جنہوں نے یہودیوں کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ اس میں سے ایک سوال، یعنی ان تینوں سوالوں میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یہ ذوالقرنین، ذی القرنین، عربک لینگویج کے لحاظ سے ذوالقرنین، یہ ذو استعمال جو کیا جاتا ہے، اگر یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، اس کو کہتے ہیں حالت رفع میں ہے یہ، تو اس وقت اس میں واو رہے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں ذوالقرنین۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی جو ہے کبھی کبھی اس میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کا نام ذوالقرنین ہے یا ذی القرنین ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا ذی القرنین، اور کبھی کوئی کہتا ہے ذوالقرنین، جیسے میں بار بار اگر کہوں گا تو ذوالقرنین کہوں گا، تو یہ ذوالقرنین، ذی القرنین یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ جیسے معاملہ ہوتا ہے ابو بکر، ابی بکر، وہ ابو بکر ہیں یا ابی بکر ہیں، تو اس طرح کے سوالات ان لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں جو عربک لینگویج سے واقف نہیں ہوتے ہیں، عربک لینگویج کے گرامر سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو اس طرح کے سوال ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس کی تھوڑی سی جو ہے کلیئرٹی، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذو کب آتا ہے؟ جب یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جب یہ حالت نصب میں ہوتا ہے تو یہ ذل قرنین ہو جائے گا۔
या ज़ल क़रनैन, क्या कहेंगे हम अरबी में? या ज़ल क़रनैन, इसको कहते हैं हालत नसब में, रअयतु ज़ल क़रनैनी, लक़ीतु ज़ल क़रनैनी, मैंने ज़ुल्क़रनैन से मुलाकात की या मैंने ज़ुल्क़रनैन को देखा। तो ये अलिफ हो जाता है। इसका तरीका यही है अरबी में कि ये हालत रफ़ा में इसमें वाव रहता है, हालत नसब में अलिफ हो जाता है, जब मफ़ूल होता है इन्ना का इस्म हो जाए तो ये मनसूबात कहलाते हैं, मरफूआत कहलाते हैं। ये अरबी के ग्रामर है ये। और जब हालत जर में होता है, यानी इसके पहले हरफ जर आ जाए या ये मुज़ाफ इलैह बन जाए, तो ऐसी सूरत में इस पर या आता है, हम कहते हैं ज़िल क़रनैन। तो यहाँ चूंकि अन आया हुआ है इसलिए है ये अन ज़िल क़रनैन, अन ज़िल क़रनैन, वयसअलूनक अन ज़िल क़रनैन, वो आपसे सवाल करते हैं। कौन सवाल करते हैं? ये कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का आपसे सवाल कर रहे हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में। ये ज़ुल्क़रनैन अरबी ज़बान में ये लफ्ज़, इसका माना उर्दू में होता है दो सींग वाला, दो सींग वाला। तो दो सींग वाला ये शख्स ये कौन है? ये इसके बारे में काफी जो है लोगों में इख्तिलाफ है। तो क्या वाकई माने में उस आदमी के, उस बादशाह के दो सींग थे सर पे? तो दो सींग रहे तो बिल्कुल जानवरों की तरह से नजर आएंगे, जैसे जानवरों के सींग दो सींग होते हैं, बाद जानवरों के दो सींग होते हैं, बाद के 12-12 सींग भी होते हैं, 12 सींगा कहते हैं उस जानवर को। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये सींग वाले थे वाकई माने में, या ये कि ये असल में किनाया है। अरबी जबान में जुल्करनैन दो सींग वाले, तो ये कर्न का लफ्ज चूंकि वो मशरिक और मगरिब, वेस्ट और ईस्ट, इन सारे इलाकों को फतह करके वहां उन्होंने अपनी हुक्मरानी के झंडे गाड़ दिए थे, तो इस लिहाज से ये पूरे इलाकों के जो कि माहिर जो उनके कब्जे में आ गए थे, और जहां से सूरज निकलता है और जहां सूरज डूबता है, अगर आप इसका ख्याल करें तो इसके लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये दो सींग वाले, ये इस लिहाज से इनका नाम पड़ा कि ये मशरिक व मगरिब दुनिया के दो किनारों पर पहुंच करके सूरज के जो कर्ण यानी सूरज की शुआओं का इन्होंने मुशाहदा किया, इस लिहाज से इनको जुल्करनैन कहा जाने लगा। तो ये लक़ब है उनका जुल्करनैन। ये मतलब नहीं है कि वाकई उनके दो सींग भी थे, बल्कि यूं कह लीजिए कि वो मशरिक़ मगरिब पहुंच करके उन्होंने सूरज की शुआओं का मुशाहदा किया, वो इन इलाकों पर काबिज हुए और इन्होंने अपनी हुक्मरानी के झंडे यहाँ पर गाड़े, इस लिहाज से इनको जुल्करनैन कहा जाता था। या ये भी कि इनकी दो जुल्फे थी, बाल जो है बाल की दो लटें थी, और असल में अरबी जबान में ये जुल्फ जो होती है, बाल की लट, कभी देखेंगे बाज लोग अपने बाल को ऐसे, जैसे औरतें गुधी हुई रहती हैं लट बना लेती हैं, तो वैसे ही जो है बाज मर्द भी अपने बालों के लट बना लेते हैं। तो इन्होंने दो लट जो है अपने सामने बालों के बना रखे थे, इसीलिए इनको जुल्करनैन यानी दो जुल्फों वाले या दो लटों, इनको जुल्करनैन कहा गया। अब चाहे जो भी हो मामला, चाहे जो भी हो, लेकिन कुरान में जिक्र बहरहाल जुल्करनैन ही आया है। तो कहा यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने वयसअलूनक अन ज़िल-क़रनैन, वो आपसे सवाल करते हैं जुल्करनैन के बारे में। ये जुल्करनैन, ये बादशाह, ये हुक्मरान कौन थे? ये जुल्करनैन, आया ये नबी थे या नबी नहीं थे, सिर्फ एक हाकिम थे, एक बादशाह थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी थे और हाकिम भी थे, तो क्या ये भी नबी भी थे और हाकिम भी थे, या ये कि सिर्फ हाकिम थे नबी नहीं थे? इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उस हदीस में यह जिक्र है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आया जुल्करनैन नबी थे या नहीं थे, तो आपने सिर्फ इतना कहा कि मुझे मालूम नहीं कि वो नबी थे या नबी नहीं थे।
یعنی اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نبی نہیں تھے. ہمیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تو ہما شما کا کیا اس میں جو ہے مقام ہے؟ ہم اور آپ اس سلسلے میں کیا بحث کر سکتے ہیں؟ کوئی بحث نہیں کر سکتے. ہمارے لیے یہ بحث زیادہ اہم تھی کہ آیا ذوالقرنین نبی تھے یا نبی نہیں تھے. اس بحث کی اہمیت ہمارے نزدیک ہو سکتی ہے میرے بھائی، یہ بحث ہمارے لیے اہم ہو سکتی ہے، لیکن یہ بحث ہمارے لیے اہم نہیں ہو سکتی یہ کون سے حکمراں تھے، سکندر رومی تھے یا جو ہے سائرس تھے، کون سے تھے، یہ جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. یہ بحث یاد رکھیے. نبی والی بات میں نے کیوں کہی کہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور سارے انبیاء پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، ہمارے عقائد اور ہماری ایمانیات کا ایک حصہ ہے یہ کہ ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھنے والی قوم ہے. اور اس لحاظ سے اگر ذوالقرنین نبی ہیں تو ان کے نبی ہونے پر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا، اور ان کے نبی ہونے پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. اس لحاظ سے ان کا نبی ہونا نہ ہونا یہ معرفت اور یہ جانکاری ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی اور نہیں کہا کہ یہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، اسی لیے ہم ذوالقرنین کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نبی تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی تھے، بلکہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. تو ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم ان کے نبوت کے بارے میں اس لیے کبھی جو ہے کوئی بات نہیں کہیں گے. لیکن جیسے قرآن میں ہے، جیسے حدیث میں ہے، اور جیسے ہمارے عقیدے میں یہ چیز ہے کہ ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم مجمل طور پر یہ کہیں گے کہ جتنے بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ذوالقرنین بھی نبی ہے تو ہمارے اس ایمان میں، مجمل ایمان میں یہ داخل ہو گئے، اور ہمیں الگ سے ان کے نام کے ساتھ ان پر ایمان رکھنے کا مسئلہ ہمارے لیے نہیں رہ جاتا ہے. تو یہ بات تھی پہلے ذوالقرنین کے تعلق سے. عام طریقے سے مفسرین کسی زمانے میں پہلے جو ہے لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں لکھتے تھے کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، کہ ذوالقرنین یہ سکندر رومی، سکندر جو ہے، چونکہ ہم جیسے ہندوستانی لوگ تو خاص طریقے سے سکندر کے تعلق سے بہت کچھ جانتے ہیں. مقدر کا سکندر تو یہاں کا محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں مقدر کا سکندر جو ہے، یعنی سکندر بڑی تقدیر لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا تھا، اور اتنا جو ہے اس کی تقدیر ایسی تھی کہ جہاں جاتا تھا فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اور سکندر رومی اس کے بارے میں تو ہماری ہندوستانی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ وہ ہندوستان بھی آیا، اور آ کر کے یہاں جب حملہ کیا تو ایک راجہ پورس یہاں کے وہ گرفتار ہو گئے، اس کے جو ہے گرفتار کر لیا سکندر نے. تو اس کے بعد جب پوچھا راجہ پورس سے کہ یہ بتاؤ راجہ کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک، تمہیں کیا امید ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے. وہ جواب بڑا عمدہ جواب تھا، تو سکندر رومی کو پسند آیا تو اس نے چھوڑ ہی دیا اس کو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سکندر کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ مقدر کا سکندر ہماری اس تہذیب، ہمارے اس ملک اور ہندوستان میں یہ اتنا زیادہ فیمس اور مشہور ہے کہ بچہ بچہ یہ جانتا ہے مقدر کا سکندر، بچہ بچہ جانتا ہے سکندر رومی، اور یہاں کی تاریخ میں بھی یہ نام ذکر کیا گیا ہے. اور یہ بادشاہ، اس کی فتوحات بھی بہت رہی ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کا یہ خیال ہو چلا تھا کہ سکندر رومی ہی اصل میں یہ ذوالقرنین ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں، حقائق کو دیکھیں، اور جب یہ پورا ذوالقرنین کا ذکر اس سورہ میں آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ بات بہت واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی کہ یہ ذوالقرنین تو ایک بڑا ہی موحد اور بہت ہی
मुत्तकी, बहुत ही साहिब वरा और अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला, आखिरत की जवाबदेही का एहसास रखने वाला और अल्लाह के बंदों पर इंसाफ करने वाला बड़ा ही नेक और मुत्तकी एक बादशाह गुजरा हुआ है, हुक्मरान गुजरा हुआ है और मुआहिद हुक्मरानों में इसका शुमार है। सिकंदर रूमी पर ये बात पूरे तरीके से सादिक नहीं आती है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सिकंदर रूमी ही जुल्करनैन है। ये तो पहले सिकंदर रूमी के बारे में बात मैंने जिक्र कर दी, जो आम तरीके से मशहूर है उसकी रोशनी में। उसके बाद जो है दूसरा मसला जो आम तरीके से यहाँ पर लोगों ने जिक्र नहीं किया, लेकिन अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो है तफसीर तर्जमानुल कुरान में उसका जिक्र फरमाया और उन्होंने सोचा कि शायद ये बहुत बड़ी तहकीक है और हमारे बहुत सारे अहबाब भी ये जिक्र करते रहते हैं कि उन्होंने बड़ी तहकीक के बाद ये साबित किया कि ये हुक्मरान जो है, ये हुक्मरान, ये जिसे रूमी लोग साइरस कहते हैं, ये वो हुक्मरान है, या इब्रानी जबान में जिसे खोरस कहा जाता है, ये वो हुक्मरान है। साइरस कह लीजिए, खोरस कह लीजिए, जो भी जो है अरब लोगों के यहाँ जो है, और दूसरा नाम जो है उसका जो है मशहूर है। तो ये कौन सा जो है हुक्मरान था? अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की एक कौल, ये साइरस जो मशहूर है, और ये साइरस, ये हुक्मरान, इसी के बारे में ये जिक्र किया गया है कि ये जुल्करनैन था। ये जुल्करनैन यही है साइरस जो है। और उन्होंने उनकी पूरी तहकीक किस पर मबनी है कि जो साइरस की जो तस्वीर निकल करके जो मुजस्समा उसका बनाया गया था, वो मुजस्समा जो आया निकला हुआ है, उस पर भी वो जो है दो सींग थे, और जो है इस लिहाज से इसके जो दो सिंग जो है होने की वजह से, सर पर मेढे की तरह दो सिंग होने की वजह से उन्होंने ये समझा कि ये जो है जो साइरस है, यही जो है साइरस जो गुजरा हुआ बादशाह है, यही जुल्करनैन है। और उन्होंने इस बात को जो है इस तरह से एक तहकीक के साथ साबित करने की कोशिश की और लोगों में ये बात उसके बाद से मशहूर हुई है। आम तरीके से लोग जो है उर्दू वाले, उर्दूदा तबका साइरस का नाम जिक्र करते हैं कि यही जुल्करनैन है। और ये फारस के इलाके का, यानी फारस के दो हिस्से थे किसी जमाने में, तो इस तरह से दोनों हिस्सों को मिलाने का इसने बड़ा अजीम काम किया था। इसीलिए बाज़ लोगों का ख्याल ये भी है कि इसको जो जुल्करनैन कहा जाता है, ये असल में दो जो है फारस के दोनों इलाकों पर इसकी हुक्मरानी थी, और इस लिहाज से फारस के दो इलाके इसके जेरे हुक्मरानी थे, इसलिए ये जुल्करनैन हुआ। तो इस लिहाज से ये साइरस जो है जुल्करनैन है। ये भी बातें जो है, और ये बात जो है वो इस तरह से भी जिक्र करते हैं कि असल में उसके सर पे कोई सिंग नहीं थी, बल्कि ये जो दो सिंग बनाए जाते थे, ये असल में जो ताज सर पे रखा गया था, जो उसकी बादशाहत का ताज, हुक्मरानी का ताज, ये पहले जमाने में बादशाहों के सरों पर ताज रखा जाता था, ताजपोशी, इसी से उर्दू जबान में बहुत मशहूर लफ्ज है ये। तो ताज, बादशाहत का ताज पहनाया जाता था, और चूंकि इसने फारस के दो इलाकों को मिलाया था, इसलिए इसके ताज पर दो सींग जैसा बनाया गया था, ये बताने के लिए कि ये दोनों इलाकों को मिलाने वाला शख्स है। इसीलिए यहूदी भी इसकी बड़ी कद्र करते थे, क्योंकि इन्होंने साइरस ने उनका भी बड़ा जो है ख्याल रखा था, साथ दिया था। तो कह लीजिए कि एक लिहाज से ये उसके सर पर सींग होने का मसला नहीं, बल्कि उस ताज में ये दो सींग थे, जो ताज के इसके सर पर सजाया गया था, और साइरस नामी बादशाह ये हुक्मरान ये गुजरा हुआ, यही जुल्करनैन है। ये भी लोगों ने बात जिक्र की है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि जिसको कुरान ने मुबहम रखा, जिसके बारे में कुरान ने नाम के साथ उसकी जो है तफसीलात नहीं जिक्र फरमाई,
हम जैसे लोगों को क्या हक बनता है कि हम अपनी तरफ से खामखा इसकी बहस में पड़े कि ये जो है वो कौन है, सिकंदर रूमी है या साइरस है या फला है या फला है। इसके चक्कर में पड़ने से क्या हमें कुछ फायदा होने वाला है? कोई फायदा होने वाला नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि उस जमाने के यहूदी भी अच्छी तरह से जानते थे जुल्करनैन के बारे में, और इसीलिए यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का से ये बात कही थी कि आप जाकर के जुल्करनैन के बारे में उनसे पूछो। उस जमाने में जुल्करनैन का ये किस्सा मशहूर रहा, लेकिन इनके यहाँ, यहूदियों के यहाँ, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का ये वाक़या है और मक्के के लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार करना पड़ा कि अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई वही आई थी तब जाकर के हम जो है कुछ जिक्र करेंगे। वही का आपने इंतजार किया था, यानी मक्के की उन गलियों में मुशरिकीन मक्का के दरमियान जुल्करनैन का ये किस्सा कोई मारूफ किस्सा नहीं था। ये तो पता चलता है हमें कुरान की इन आयतों से, और हमें पता चलता है कुरान की जो है इन आयतों के सबब नुज़ूल को जान करके कि मक्के के लोगों को इसका इल्म नहीं था, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने ये सवाल यहूदियों के उकसाने पर किया था और यहूदियों के कहने पर यह सवाल उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। और आपने भी वो जो किस्सा कहानी के तौर पर चीजें मशहूर होती है, उस तरह की कोई बात जिक्र नहीं किया आपने। अगर ऐसा कुछ होता मामला तो मक्के के मुशरिकीन तो वो भी जानते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते, लेकिन मक्के में ये चीज मशहूर नहीं थी, ये हमें अंदाजा होता है। और जो चीज जुल्करनैन के बारे में जिक्र की गई है, हमारे लिए मेरे भाइयों वही काफी है। जुल्करनैन नबी थे या नबी नहीं थे, इसके बारे में जो इख्तिलाफ है, आगे चल कर के एक आयत आएगी, उस आयत की रोशनी में बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वो नबी थे। उसी आयत से इस्तेदलाल करते हुए उसका जिक्र हम जहाँ पे वो आयत आएगी वो बयान करेंगे। लेकिन हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने जिक्र फरमा दी है, जिक्र कर दी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद कहा है कि मुझे मालूम नहीं कि ये नबी थे या नबी नहीं थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म नहीं था तो हम कौन होते हैं खामखा इसके बारे में इत्तेफा करेंगे कि हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि ये कोई नबी थे या नबी नहीं थे। हाँ, जो है ये तो बिल्कुल जाहिर है कुरान की आयतों से कि ये बड़े ही मुवहिद यानी तौहीद के मानने वाले और एक आदिल इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, हाकिम थे, जिन्होंने दुनिया के इलाकों पर फतह हासिल करके वहां पर अदल इंसाफ का बोलबाला किया था। तो ये एक तरह के इस तरह के हाकिम थे, ये बात तो जो है समझ में आती है। और जब आयतें पढ़ेंगे हम तो जुल्करनैन के ताल्लुक से उनके वाक़े में हम सब के लिए जो नसीहत के पहलू हैं, इबरत के पहलू हैं, इबरत और नसीहत के जो खजाने हैं, हम इंशाअल्लाह उसकी तरफ इशारा करते रहेंगे और तंबीह करते रहेंगे, बयान करते रहेंगे, पॉइंट से ये जिक्र करते रहेंगे। आप उस पर गौर कीजिएगा, जुल्करनैन कौन थे, इसकी बहस पे पढ़ने की हमको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम आते हैं फिर से आयत की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन, वो लोग आपसे पूछते हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में। अभी जो बात मैंने अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिक्र की थी, तर्जुमान कुरान में उन्होंने लिखा ये साइरस और वो मुजस्समा जो निकला उसको खास तरीके से उन्होंने अपने उस पूरी जो है दलील, अपने उस पूरी तहकीक के लिए दलील के तौर पर पेश किया। याद रखिए कि ये मुजस्समे कुछ भी जाहिर नहीं करते, मुजस्समे जो निकल जाते हैं ना, ये कुछ भी जाहिर नहीं करते हैं। मुजस्समे कब बनाए गए,
क्या क्या हुआ, इन मुजस्समों पर कहाँ तक आप भरोसा कर सकते हैं, कहाँ तक आप यकीन कर सकते हैं। ये चीजें भी खुद एक सोचने का जो है सोचने का एक पहलू है कि हम इसके बारे में भी सोचें कि हम कहाँ तक इस पर भरोसा कर सकते हैं, कहाँ तक हम इस पर यकीन कर सकते हैं। मुजस्समे बनते भी हैं और मुजस्समे जो है ये दफन भी हो जाते हैं, निकल भी जाते हैं फिर से। तो ये सब चीज़ें जो है ज़रा ताज्जुब की कुछ चीज़ें होती हैं मेरे भाइयों की। वो किसने कब बनाया था और कहाँ कब दफन किया था और कैसे ये निकल गया, ये सब चीज़ें कहाँ से आप साबित कर पाएँगे कि उसी ज़माने में बना था। और बिल्कुल ये हकीकी तस्वीर जो है ज़ुल्क़रनैन की पेश कर रहे हो, कहाँ तक जो है आप इसे पेश कर पाएँगे। बहरहाल और खुद भी ये सोचिए आप कि अगर वाक़ई माने में 2 सींग हो तो वो कैफियत एक इंसान की क्या होगी, वो आप खुद भी सोच सकते हैं। और हमने देखा है कि जिनों वगैरह की जो तस्वीरें बनाते हैं ना लोग, तो शैतान की और जिनों की, वो शैतान और जिन के सर पर सिंग दिखाते हैं। आप देखेंगे कि जो बुरे लोगों को जब दिखाना होता है, यानी शैतान की जो है शबीह बना करके, शैतान जो है आप जानते हैं कि ये बुरों का सरदार है, बुरे लोगों का सरदार है, तो शैतान की सब शबीह बनाते हैं। जब ड्रामों वगैरह में कोई जो है बुरे आदमी का किरदार और बुरे आदमी का रोल पेश करना होता है, तो वो सिंह बना देते हैं, शक्ल को बिगाड़ देते हैं, कभी एक आंख को कानी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये जो है जो थोड़ी भयानक शक्ल होती है, तो ये बुरे लोगों की पहचान बन जाती है। ये आम तरीके से होता है। तो ये 2 सिंह, चूंकि हदीस में आता है शैतान के बारे में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जब सूरज निकलता है तो उस वक्त नमाज पढ़ने से आपने मना फरमाया, जब सूरज जो है डूबता है तो मना फरमाया जो है उस वक्त नमाज पढ़ने से। और आपने ये कहा कि ये सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान निकलता है, यानी शैतान जा करके अपने दोनों सींगों को सूरज के पास कर लेता है। तो अगर कोई उस टाइम पे इबादत करता है तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो शैतान की पूजा कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम खास तरीके से नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। तो ये एक पहलू कि यहीं से ये बात आई कि शैतान की 2 सींगें हैं। तो शैतान क्योंकि वो कहा उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें कर्ण का लफ्ज नहीं आता जैसे यहाँ कर्ण का लफ्ज है, कि वो शैतान के 2 इब्लीस के 2 कर्नों यानी 2 सींगों के दरमियान निकलता है सूरज। तो ये एक तरह से अच्छी शक्ल जब नहीं पेश करना होता है, तो ये किरदार में जब बुरे आदमी का किरदार होता है, शैतान का किरदार होता है, तो 2 सींग जो है लगा करके पेश किया जाता है। अब पता नहीं उस जमाने में क्या रहा हो, अल्लाह आलम। और जुल्करनैन से क्या मुराद है, वाकई माने में उनको सींग थी, 2 सींग नहीं थी। ये सब चीजें अपनी जगह पर ये मुहावरे की जबान है, या ये कि हकीकत के लिहाज से उनके 2 सींगें थी, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ भी इल्म नहीं है। इसलिए हम इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार करते हैं। हम साइरस के बारे में भी ये नहीं कह सकते कि यही जुल्करनैन था। अब ये बातें जो है आपके सामने एक तमहीद के तौर पर हमने पेश कर दी। अब देखिए आयत, वयसअलूनका अन ज़िलक़रनैन, वो आपसे सवाल करते हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में। कुल अतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप कह दीजिए कि मैं जुल्करनैन के ताल्लुक से जिक्रा थोड़ा हाल बयान करूंगा। मैं जो है तुम्हारे सामने जुल्करनैन की किस्से की थोड़ी तिलावत करूंगा। यहाँ अब ये थोड़ा सा जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया कि थोड़ा हिस्सा, हम उनकी कहानी का थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे। तो ये माना इस आयत में कहाँ से आया। अब देखिए जो है अरबी जबान जो जानते हैं थोड़ी सी, उनको जो है समझने में और आसानी होगी। देखिए फिर से पढ़िए, कुल आप कह दीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, मुखातब आप ही है। और जब आप जो है कोई भी शख्स आपसे सवाल करता है तो जवाब देना है, तो आप जो है ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा जिक्र जुल्करनैन का कुरान में आया है हमारे, हम आपके सामने भी पेश करते रहे हैं। कुल आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए,
सअतलू अलैकुम, सअतलू, सीन ये पहले मुदारे जो होता है, अतलू ये फेले मुदारे है, उसके पहले सीन या सौफा अरबी में आता है, तो ये फेले मुदारे को फ्यूचर के माना में कर देता है। तो इसीलिए इसका माना करते हुए कहा जाएगा कि मैं जल्द ही आपके सामने, अनकरीब आपके सामने तो मैं तिलावत करूंगा, पढ़ करके सुनाऊंगा। सअतलू अलैकुम, मैं तुमको पढ़ करके सुनाऊंगा, तुम पर तिलावत करूंगा। क्या? मिन्हो जिक्रा, ये तरतीब बदल गई है अरबी यहाँ पर जो है उस मुसज्जा इबारत बनाने के लिए जिक्रा को आखिर में लाने के लिए मिन्हो को पहले जिक्र किया गया है, वरना तरतीब ये है जिक्रम मिन्हो, जिक्रम मिन्हो, उनका थोड़ा सा जिक्र। ये थोड़ा का माना कहां से आया? ये जिक्रन जो कहा, तनवीन जो जिक्रन में है, तनवीन दो जबर, ये अरबी में यहाँ पर तकलील के माना में है। तकलील, तकलील कहते हैं ये किल्लत से है, कमी को अरबी में जो है तकलील कहा जाता है, यानी इसी से थोड़ा का माना आया। मैंने थोड़ा का माना क्यों किया है वो मैंने आपके सामने वाज़ेह किया कि ये थोड़ा का माना यहाँ कोई लफ्ज कलील तो है नहीं, जिक्रन कलीलन नहीं आया हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमने माना क्या किया, थोड़ा सा जिक्र। पूरा किस्सा उनका नहीं बयान करेंगे, अब उनकी पूरी जिंदगी की कहानी बयान करना शुरू करेंगे तो लंबा वक्त चाहिए। और ये कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं, ये तो इबरत और नसीहत का खजाना है। इसलिए उनका थोड़ा सा जिक्र जिसमें इबरत और नसीहत की बातें थी, सिर्फ उतना ही जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किया है। तो इसीलिए कहा कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु जिक्रा, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे सामने उनका थोड़ा सा जिक्र करूंगा, थोड़ा सा जो है पढ़ करके तुम्हें सुनाऊंगा। जो कुरान में आयत नाजिल हुई थी वही आपने पढ़ करके सुनाया। तो ये अतलू का लफ्ज है, ये तला यतलू अरबी जबान में, इसी से हम तिलावत कहते हैं कि कुरान की तिलावत किया। अरबी जबान में इस लफ्ज का असल माना होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो जब कोई चीज चलती है तो उसी को अरबी जबान में तला यतलू कहा जाता है, एक के पीछे एक चलता है। और कहानी हिस्सा जब बयान करते हैं तो एक के बाद एक कैसे ये चीज पेश आई है, कैसे वो मशरिक की तरफ गए, मगरिब की तरफ गए, शिमाल की तरफ गए। ये जो इलाके हैं यानी वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, जो ये सब इलाके जहां जहां उनका जाना हुआ, तो एक एक करके ये वाक़े हम आपके सामने पेश करेंगे, एक के बाद एक पेश करेंगे। तो इसलिए कहा कि कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु जिक्रा, यानी अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि यहाँ जुल्करनैन के बारे में पूरी तफसील हम आपके सामने पेश नहीं करेंगे। तो फिर हमारे भाइयों को क्या हो गया है कि खामखा जो है तौरात से, इंजील से, दूसरी किताबों से लेकर के, या जो मुजस्समे जमीन से निकले उसको लेकर के खामखा की तफसील में जाए। इस तफसीलात की हमें क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने सिर्फ नसीहत की जो बातें थी वही जिक्र फरमाई है और हमको भी उसी पर इक्तिफा करना चाहिए। उसके बाद वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, हमने उनको, उनके लिए जमीन में गलबा अता फरमाया, हमने जमीन में उन्हें कुव्वत अता फरमाई, हमने ताकत दी उनको, उनके पास हर तरह की ताकत, हर तरह की ताकत क्या है, हर तरह के वसाइल और सोर्सेस उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे। मैन पावर भी था उनके पास, और इक्तिसाद के लिहाज से इकोनॉमी का जो पावर होता है वो पावर भी, जो है सोर्सेस हो सकते हैं, जो भी जराए हो सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनायत फरमाया था। और इस तरीके से उन्हें जमीन पर गलबा हासिल हुआ था। तो कहा अल्लाह ताला ने इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, हमने उनको जमीन पर गलबा इनायत फरमाया, जमीन में हमने उनके लिए गलबा इनायत फरमाया, कुव्वत जो है हमने उनको दी थी। तो ये पॉइंट याद रखिए
इतनी बड़ी हुक्मरानी जो ज़ुल्क़रनैन की थी, किसकी अता की हुई थी? रब्बुल आलमीन की अता की हुई थी। वही मालिकुल मुल्क है, वही बादशाहत देने वाला है, वही हुक्मरानी देने वाला है, वही जमीन में कुव्वत बख्शने वाला है। एक मोमिन, एक मुसलमान हमेशा उस अल्लाह पर यकीन रखने वाला मोमिन उस अल्लाह से मांगता है, उस पर तवक्कुल करता है, और दुनिया की सुपर पावर कहने वाली जो हुकूमतें हैं उनके सामने सजदा रेज नहीं होता, घुटने नहीं टेकता, और अपने आप को उनके हवाले नहीं करता है कि ये हमें बचाएंगे और ये हमारी किस्मत के फैसले करेंगे। नहीं, बल्कि क्या है? इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, हमने उनको जमीन में गलबा इनायत फरमाया था, कुव्वत अता की थी। और यही कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम को देता है। ये कुव्वतें तो मुशरिकीन को मिली है, बड़े बड़े जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मिली है। फिरौन भी अपने जमाने का बड़ा ही जालिम और जाबिर बादशाह, कैसर और किसरा की हुकूमत है किसी जमाने में, रोमन एम्पायर, और जो है ये फारस का जो है एम्पायर जो था जिसको किसरा कहा जाता था। तो ये कैसर और किसरा की ताकतें भी किसी जमाने मुशरिक कौम थी। ये कैसर जो है ये क्या है? ये ईसाई लोग थे ये, और ये लोग भी शिर्क में मुब्तला थे उस जमाने में, और ये तो आग के पुजारी थे। फारस वाले लोग ये मजूसी थे, आग के पुजारी थे, तो ये सब, लेकिन बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई थी। तो अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों को भी जमीन में कुव्वत अता फरमाता है जब वो अल्लाह ताला के सोर्सेस का सही इस्तेमाल करते हैं, तो ताकत उनको भी मिलती है। और जब अल्लाह ताला ने जो सोर्सेस दिए हैं, कोई मुआहिद कौम भी, तौहीद परस्त कौम भी जब उनका सही इस्तेमाल नहीं करती है, तो वो कौम जिल्लत और रुसवाई के आरे अमीक में, गहरे खड्डे में जाकर के गिरती है, जैसे आजकल मुसलमानों का हाल हो गया है। पूरी ताकत होने के बावजूद, सोर्सेस, हर तरह के सोर्सेस इनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास दुनिया की वो कुव्वत नहीं जो कुव्वत होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला के दिए गए सोर्सेस का सही इस्तेमाल नहीं। तो जो सोर्सेस का सही इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला उन्हें कुव्वत देता है, चाहे वो मुशरिकी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ तो ये वाहिद बादशाह जुल्करनैन हाकिम वक्त, बड़ा ही तौहीद परस्त, बड़ा मुत्तकी, बड़ा सालेह और नेक बादशाह, इंसाफ पसंद बादशाह, ये अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको जमीन में कुव्वत अता की थी। तो क्या हुआ? वो आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने उसे हर चीज से वसाइल इनायत फरमाए थे। सबब का माना ये क्या है? यहाँ पर वसीला है, जरिया है, सोर्स जिसे आप इंग्लिश में कह लेते हैं, यही सबब है। सबब के माने अरबी जबान में रस्सी के भी होते हैं, सबब के माने अरबी जबान में जो है रीजन के भी होते हैं, तो सबब के माने अरबी जबान में वसीले के भी होते हैं, क्योंकि ये वसीले जो है ना, ये जरिया है किसी जगह पहुंचने के। तो इस तरह से वो सबब बन जाते हैं, तो उसको अरबी जबान में, जिसे हम इंग्लिश में सोर्स कहते हैं, तो अरबी में उसके लिए सबब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ सबब का लफ्ज आया, कहा कि वआतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, आतैनाहु सबबन मिन कुल्लि शैइन, आतैनाहु सबबन मिन कुल्लि शैइन, हमने उनको अता किया। आतैना का माने यहाँ पर अता किया, हमने दिया। जुल्करनैन तो इसको दो मफूल चाहिए, ये जो फेल आता है आता युति, ये जो इस्तेमाल किया गया है, ये इसको दो फेल मफूल चाहिए।
تو आतैनाहु में हु एक मफूल है और सबबन ये दूसरा मफूल है। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको अता किया हर चीज में से सोर्सेस, असबाब, जराए। सबब भी यहाँ पर देखिए, पहले जिक्र सबब जो है ना, तनवीन जो है यहाँ पर ये तकसीर के माना में है, तफखीम के माना में है, यानी बड़े असबाब अल्लाह ताला ने दे रखे थे, अजीम असबाब। वरना तो दुनिया में हर शख्स के पास अल्लाह ताला की तरफ से सोर्सेस होते ही हैं, लेकिन कहीं ये सोर्सेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरों के मुकाबले में बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो लोग फायदा भी उसका ज्यादा उठा सकते हैं, अपनी ताकत को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वातैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। तनवीन का माना मैंने आपके सामने यहाँ जिक्र कर दिया कि हमने उनको हर चीज में से बड़े सोर्सेस दिए थे, बड़े असबाब इनायत फरमाए थे। अब एक होता है अल्लाह ताला की तरफ से सोर्सेस देना, इनायत करना। अब दूसरा काम क्या है, बंदों की तरफ से उन सोर्सेस का सही इस्तेमाल करना। ये दो चीजें बड़ी अहम है और हमेशा जुल्करनैन के किस्से में इसको याद। एक है वसाइल इनायत करना, ये वसाइल मुहैया करने वाला, इनायत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, रब्बुल आलमीन है। और इन वसाइल को इस्तेमाल करने वाला ये इंसान है, जमीन के धरती पर बसने वाला ये इंसान, हम जैसे इंसान ही इसको इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला के इन वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। जमीन सोना उगलती है, लेकिन अगर जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने खजाने रखे हैं, लेकिन अगर कोई इन खजानों का सही इस्तेमाल न जाने तो कोई फायदा नहीं होता। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने वसाइल दिए, सोर्सेस दिए, अब इंसानों का काम क्या होता है कि इन सोर्सेस का सही इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला ने बाद वाली आयत में क्या कहा, जुल्करनैन की तारीफ करते हुए फअत्बअ सबबा, तो असबाब के पीछे लगा। जो हमने असबाब दिए थे, जो हमने इनको इनायत फरमाए थे, असबाब इनायत फरमाए थे, ये उसके पीछे लगे। अतबा सबबा, अतबा सबबा, यानी आपने आप को इनके पीछे लगाया, इन वसाइल को बर्बाद नहीं किया, इन वसाइल को जाय नहीं किया, इन वसाइल का, इन सोर्सेस का सही इस्तेमाल किया। ये है, याद रखिए मेरे भाई, बड़ी अहम चीज है, आज के दौर के लिए बड़ी अहम नसीहत है। अल्लाह ताला ने जो सोर्सेस दिए हैं, उन सोर्सेस का सही इस्तेमाल इंसान को ताकतवर बनाता है और इंसान को कवी बनाता है, सुपर पावर बनाता है। और जब इन्हीं वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं हो, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो जाती है, तो फिर इंसान बजाय सुपर पावर बनने के बिल्कुल जलील होकर के रह जाता है, लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, कितनी मुस्लिम हुक्मरां हैं, कितनी मुस्लिम हुकूमतें हैं और मुस्लिम इलाके जो मौजूद है दुनिया में अभी इस वक्त। मैं आपसे सिर्फ जो है गौर करने के लिए कहूँगा और इसी पर हमारा खत्म होगा। देखिए, दुनिया के कौन सा ऐसा सोर्स है जो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को नहीं दिया है। हर पहलू से देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के खजाने जो है हमारे इलाकों में, अल्लाह ताला ने जमीन के खजाने जिस पर दुनिया की हुकूमतें मुनहसिर हुआ करती है, ऐसे खजाने हमारी जमीनों में रखे।
اور دیکھیں گے آپ تو ہر طرح کے یعنی اسٹریٹجک جو کہا جاتا ہے آج کے زمان میں کہ جو محل وقوع ہے، محل وقوع اردو میں کہا جاتا ہے جس جگہ پر واقع ہے، ایسے ایسے جو ہے میرے بھائیو علاقے موجود ہیں کہ ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے جوڑنے کا سب سے میں کسی زمانے میں جغرافی میں پڑھتا تھا کہ قناۃ سویس عربی میں کہتے ہیں، سویس جو ہے ایک جو ہے نہر ہے، یہ بہنے والی نہر، یہ سب کی سب مسلم علاقوں میں، اور تین چیزیں جو زمین سے اگنے والی ہیں اور زمین سے پیدا ہوتی ہیں وہ انہی جو ہے مسلم کنٹریز میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادیاں ہیں وہاں پر ان کی بڑی کثرت اور بہت کثرت سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسباب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیے، لیکن ان اسباب سے دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھا کر کے اپنی قوت بنائی، اور ہم لوگ صرف اور صرف اپنے عیش و آرام کے سامان کرتے رہے اور کچھ نہیں کیا، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور ان اسباب کو استعمال کر کے کس طرح سے ہم اپنی طاقت بنا سکتے ہیں ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں، سوچا ہی نہیں اس کی طرف کبھی بھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اتنے ذلیل و خوار ہوئے کہ آج ہماری آواز کا کوئی وزن نہیں ہے پوری دنیا میں، ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں، اور جب ہمارے کسی مسلم کنٹری پر کہیں کسی طرح کا کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، تو کس سے مدد مانگتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی طاقتیں ہمارے ہی سورسز سے بنا رکھی ہیں، ان سے ہم مدد مانگنے کے لیے، یعنی ہم دشمن سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، اور ہم نے خود اللہ تعالیٰ کے دیے گئے ان وسائل کا، ان سورسز کا صحیح استعمال کر کے اپنی طاقت کبھی نہیں بنائی کہ ہم خود ایک طاقت ہوں اور ہم خود جو ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکے کسی سے اور ہماری بات کا ایک وزن ہو سکے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمیں عنایت کی تھی میرے بھائیوں، یہ لیکن افسوس کا مقام یہی ہے کہ ہم نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، یہی یہ آیت ہے، اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ جو ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے ان وسائل کا استعمال کر کے اب کیا کیا ہے، اس کے بعد اپنی طاقت بنائی، طاقت بنانے کے بعد اب جب طاقت ہوتی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے، اس وقت یہ سوچتا ہے آدمی کہ ہم نے توحید کا بول بالا یہاں کیا، ہم نے امن و شانتی کا پیغام لوگوں کو سنایا، اس علاقے میں سنایا، اب ہم دوسرے علاقوں میں بھی امن و شانتی کا یہ پیغام لے کر کے جائیں گے، اور اس طریقے سے اللہ کا یہ نیک بندہ، یہ حاکم، انصاف پسند حاکم اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے رہ نہیں گیا، بلکہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو کس طرف جاتا ہے، پہلے جو ہے کس طرف جاتا ہے وہ آگے کی آیتوں میں آپ کے سامنے آئے گی بات، جس علاقے میں تھا اس علاقے سے اب آگے بڑھتا ہے، اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے، یہ ذرائع دیے، تو ان وسائل اور ذرائع کو استعمال کر کے، ان سورسز کو استعمال کر کے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہی یہ نیک اور صالح حاکم آگے بڑھتا ہے اپنی فوج کو لے کر کے، کس طرف جاتا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر جو ہے آگے کی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا درس اب جو ہے ہمارا درس